Hello everyone, welcome. So we are done with this linear algebra part for the GATE data science and artificial intelligence. So मैंने काफ़ी डिटेल मैनर में सारे टॉपिक्स को कवर किया, राइट? सो ये कोर्स आपका फरवरी एंड से स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट इट टुक्स 2 month और यू कैन से 50 to 60 days टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, राइट? अब आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है क्या वो गेट डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस से इनलाइन करता है कि नहीं करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड राइज इन योर माइंड, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस video, I am going to look side by side all the topics that I have covered and along with the syllabus, and at the end we will conclude that what are the topics that we have covered so far. Is it 100% or is it in line with the syllabus or not, right? So that is what we want to see in through this video. So I have here the syllabus, right? And the very important point of this playlist is that we have covered this in very logical manner, right? So right just now I will explain how we have covered this complete linear algebra part, right? Even if you go for interview at any places for the linear, if they are asking the linear algebra question, you will be able to answer those questions. Not only that, you will be able to solve the new questions if they are coming in your examination, right? And apart from this completion of syllabus, we will have the different session that we are going to call that session as a daily dose, and in that daily dose you will find I will be solving all PYQ question. So now let me walk you through what we have covered and what is mentioned in the syllabus. So if you look at the screen, you will find the text in two colors, that is in white and that is in yellow, right? So white, yellow. So these are in white text and others are in yellow. So ये जो white text है ना, ये सारे टॉपिक्स जो है मेंशन है सिलेबस में. जैसे कि आप देखो मैट्रिसेस, गॉसियन एलिमिनेशन, एज कश एलयू, decomposition, rank, vector space, subspaces, independence, dependent, orthogonal matrix, projection, right? And determinants, eigenvalue, eigenvector, and singular value decomposition, quadratic form. So these topics that are in white color, these topics are mentioned in the syllabus, right? You can look at the syllabus, right? Now, how logically we have covered the complete subject. Let me go through that. Let me walk you through the complete. So आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया, राइट? सो अजम्पशन क्या होगा कि आपको पहले से वेक्टर्स के बारे में पता रहना चाहिए, वेक्टर्स के ऑपरेशंस के बारे में पता रहना चाहिए, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कंबाइंड ऑपरेशन, दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन. वेक्टर्स के लेंथ के बारे में पता रहना चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, जो फंडामेंटल सब चीज़ है वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन, वो पता रहना चाहिए. तो मैंने ये कवर किया एंड दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, एंड आई कवर दिस पार्ट कि आपको जो चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाए, राइट? नाउ वंस यू पुट ऑल दिस वेक्टर एज अ कॉलम, और मे बी आप उसको एज अ रो भी पुट कर सकते हो, देन that lead to formation of this matrices, right? And this matrices that is in the white color is mentioned in the syllabus. So now we should study what is this matrices and what we can do with the matrices, right? So आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा होगा, राइट? सो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन द syllabus, right? And using these matrices we can write this system of equation in matrix equation. जैसे कि ax is equals to b is a representation of this system of equations, right? So you see that
using this matrices we can have this linear equation in terms of matrix equation, right? And this is also mentioned in the syllabus, that how to find the system of equation and their solution, right? And अगर आपके पास मान लो कि 100 नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 1000 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है विथ मे बी 1000 वेरिएबल, then in that case what we do, we represent it as a compact form and we try to translate this system of equation into the matrix equation, right? Now so अब जो भी आप अब पहले आप जब पढ़ते थे, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन रहता था तो आपको अगर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना रहता था, तो अगर आप 9th क्लास से कॉल करो, 9th या 10th क्लास में, so what you used to do, you used to cancel out or you used to eliminate one of the variable, right? अब अगर मेरे पास 100 ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और विद द 100 वेरिएबल्स है, राइट? सो एंड नाउ वी हैव सम वे, कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट दोज system of equation in terms of matrices. So we should have some kind of method that we can eliminate the variables, so that will lead to the elementary row operation. With the elementary row operation we try to eliminate the variables, right? So that is what we study about the Gaussian elimination. So Gaussian elimination is the way जिससे कि हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स ए को यू में कन्वर्ट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन ही कर रहे हैं, राइट, यूजिंग दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. सो आप जैसे ही आप ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करोगे तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए से अपर ट्रायंगुलर की ओर कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई शुड हैव सम वे कि मैं इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को रिवर्स कर सकूँ, राइट? सो देयर वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ए इज इक्वल्स टू एल यू डिकम्पोजिशन. ये क्या बोलता है कि आप अगर ए से यू की ओर जा चुके हो तो लेट मी गिव यू अ मेथड दैट इज गोइंग टू रिवर्स द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ई इनवर्स, दैट इज द जो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में किया है उसी को इन्वर्स कर दो तो यू विल गेट बैक दिस ए, राइट? एंड दिस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, राइट? नाउ once you will do this elementary row operation you will find कि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेस वगैरह का हेल्प लेंगे. तो इन दैट यू विल सी कि हम लोग ट्रांसपोज और परमुटेशन मैट्रिसेस के बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट? नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको कि हम लोगों ने मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखा था, दैट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट? तो यहाँ पे अननोन क्या है, एक्स है. तो अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो एक्स विल बी ए इनवर्स बी. तो यहाँ से मेरा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. सो बिकॉज अगर आपको x पाना है तो ए इन्वर्स रहना चाहिए, और ए इन्वर्स क्या है, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, राइट? सो फ्रॉम हियर वी हैव इंट्रोड्यूस दिस इन्वर्स मैट्रिसेस, राइट? सो ये तो था अभी तक हम लोगों ने जो बात किया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग? मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गॉसियन एलिमिनेशन, ए इज इक्वल्स टू एल यू डिकम्पोजिशन. अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछने दो, क्या इन सब को टॉपिक को कवर करने के लिए ये करना ज़रूरी था जो येलो कलर में है? डू आंसर मी कि क्या ये करना ज़रूरी था? ऑब्वियसली अगर हम लोग ये नहीं किए रहते तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं होते और समझे नहीं होते टॉपिक, राइट? ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड. सो अब जब आपने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया, राइट, तो यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरे पास कभी एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है. तो इफ़ वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कैन वी जनरलाइज और कैन वी राइट दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? सो अभी जस्ट जानोगे आप कि ये चीज़ हम लोग कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, कि कैसे हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को जनरल वे में लिख सकते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग ने फंडामेंटल लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने वेक्टर्स और लीनियर कॉम्बिनेशन को देखना स्टार्ट किया था, राइट? सो अब जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो वेक्टर्स का स्पेस देता है, राइट? सो
हम लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ना स्टार्ट किया, और हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर स्पेस को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेस ही नहीं देखा, हम लोगों ने इसके जनरलाइजेशन को भी देखा. जनरलाइजेशन इन द सेंस कि वेक्टर स्पेस कैन अप्लाइड, और वेक्टर स्पेस कुड बी अ स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, और मे बी it could be a space of signals, or it could be a space of anything that obeys the vectors operations, right? So the vector space could be anything, but हम लोगों का मेन कंसर्न क्या था कि हम लोग वेक्टर स्पेस को एज अ वेक्टर स्पेस की तरह देखने वाले हैं. मतलब कि हम लोग जो स्पेस देखेंगे वो वेक्टर्स का ही स्पेस देखेंगे. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस 2 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस, राइट. अब देखो ये वेक्टर स्पेस का ज़रूरत क्यों है, राइट. सो वेक्टर स्पेस हम लोग इसलिए देखना स्टार्ट किए ताकि हम लोग जो लीनियर अलजेब्रा में मोर जनरलाइजेशन की तरफ कदम रखें, मतलब चीज़ों को मोर जनरलाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकें. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, राइट. सो कैन वी राइट द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? इट इज़ नॉट फिजिबल टू राइट ऑल दो सॉल्यूशन, बट कैन वी हैव द वे टू राइट दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? येस, इफ वी टॉक in terms of vector spaces, then we can write those infinite many solution, right. So यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस का फॉर्मेशन हुआ, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से स्पेस का फॉर्मेशन हुआ, एंड दो स्पेस स्पेसिफिकली दीज R3, R3, R4, राइट. एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस सब स्पेसेस. सो दिस सब स्पेसेस आर नथिंग बट द वेक्टर स्पेस का ही स्पेस है, छोटा सा स्पेस. वो सब स्पेस को भी हम लोग वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं. सो दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन वेरी डिटेल मैनर, राइट. अब इस वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए, सिंस वेक्टर स्पेस contains all those infinite set of vector, right. So can we choose some specific vector that can represent the whole vector space? Yes, we can choose, and we name it as the basis. So हमने basis को introduce किया, and if so basis should be independent, those set of basis should be independent. So हम लोगों ने फिर यहाँ पे introduce किया कि what set of vectors are independent or dependent, right. So these things are mentioned in the syllabus. अब अगर हम लोग किसी भी वेक्टर स्पेस के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो उसके डायमेंशंस के बारे में भी हमको इंटरेस्ट होगा. सो दैट इज़ वाई आई हैव इंट्रोड्यूस दैट द हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, राइट. नाउ वी हैव सॉल्व दिस system of equation here, right. Ax is equals to 0 and Ax is equals to b, right. So maybe we will have some infinite many solution. So if we have studied about this vector space, right, then for this kind of system of equation we can write those infinite many solution. हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि मैंने लिखा होगा जब भी सॉल्यूशन को, तो स्पैन ऑफ दिस वेक्टर, स्पैन ऑफ द दैट वेक्टर, राइट. So we have the support of this vector space to write the solution of this system of equations, right, even if it is infinite many, right. So हम लोगों ने यहाँ पे introduce किया what is this special solution and what is this particular solution for this kind of system of equation, right. अब आप देखो कि since हम लोगों ने वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस के बारे में जाना, और स्पेसिफिकली हम लोग इंटरेस्टेड हैं वेक्टर के वेक्टर स्पेस से, राइट. सो नाउ इस मैट्रिक्स का कुछ सब स्पेसेस होगा, एंड दो सब स्पेसेस आर, तो मैट्रिक्स है ना, इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम्स क्या है, वेक्टर है. तो दीज कॉलम्स विल फॉर्म द कॉलम स्पेस, एंड दिस रो विल फॉर्म द रो स्पेस, एंड दिस नल स्पेस. So for this system of equation Ax is equals to 0, so x will be in the null space. So we just want to not have one x, but we want to have all the x that are satisfying this equation. So we have the null space and the left null space. So these are the 4 fundamental subspaces, right. And you have
अगर आप देखोगे कि ये नलिटी जो है वो मैंशनड है इन द सिलेबस, एंड दिस नलिटी इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ दिस नल स्पेस, राइट। तो अगर आपको ये नलिटी पढ़ना है तो ये नल स्पेस पढ़ना पड़ेगा, और अगर नल स्पेस पढ़ना है तो यू शुड हैव दिस Ax इज इक्वल टू 0, राइट। एंड from this matrix you should have the knowledge of this column space, row space, left null space and the null space, right। अब जैसे ही अगर आप ये 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ रिलेशन, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन बिटवीन दीज 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस, right। So from there we picked the orthogonality chapter and we looked at the relation between 4 fundamental subspaces, right। and right, और ये प्रोजेक्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द सिलेबस। तो हम लोग क्या करते हैं, या नहीं तो बहुत छोटे स्तर पे देखा जाए और 1 डायमेंशन में देखा जाए तो एक लाइन पे हम लोग जो है किसी वेक्टर को प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, ऑन द लाइन, राइट। अगर हायर डायमेंशन में जाओगे तो यू विल प्रोजेक्ट इनटू सम सब स्पेसेस, लाइक अगर मैट्रिक्स के टर्म्स में बात करें तो कॉलम स्पेस से प्रोजेक्ट करोगे एक वेक्टर को। तो दिस प्रोजेक्शन इज मैंशनड इन द सिलेबस, सो दैट इज़ वाई। और उससे ही रिलेटेड ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है किसी भी वेक्टर को, राइट। तो अब जैसे ही हम लोगों ने ये प्रोजेक्शन पढ़ा तो ये लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन आता है, जो कि आपको मशीन लर्निंग में भी देखोगे दिस वन। सो ये लीस्ट स्क्वायर हम लोगों के पास हमेशा क्या होगा, Ax इज इक्वल टू, सो बी विल नॉट बी ऑलवेज इन द कॉलम स्पेस, सो वी ट्राई टू फाइंड द अप्रॉक्स सॉल्यूशन। सो दैट इज वाई वी हैव कवर्ड दिस लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, सो दैट, राइट। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बेसिस पढ़ा, सो दीज बेसिस सेट्स आर इंडिपेंडेंट वेक्टर बट वी वांट अ बेसिस दैट आर ऑर्थोगोनल, राइट। सो दैट इज वाई वी हैव सीन दिस ऑर्थोगोनल बेसिस, राइट। अब इन्हीं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का जो वेक्टर होगा, सारे ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, राइट। एंड दे विल form a set of bases but all those vectors will be perpendicular। so इनको जब हम एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो दैट विल गिव यू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट, एंड दैट इज इन द सिलेबस, राइट। so this is how we have covered the entire syllabus, right। similarly after that we started going into different module and we started preparing with this eigenvalue eigenvector। एंड इस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए, जैसे कि आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का नॉलेज रहना चाहिए, राइट। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट द डिटर्मिनेंट एंड वी स्टार्टेड लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज, वी लुक्ड एट द 4 डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, वी लुक्ड एट द क्रेमर्स रूल एंड क्रेमर्स रूल गिव्स यू कि आप Ax इज इक्वल टू बी को कैसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द डिटर्मिनेंट, और Ax इज ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हो यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग, राइट। एंड जैसे ही हम लोगों ने डिटरमिनेंट कवर किया वी जंप्ड इनटू द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, राइट। एंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, जैसे कि एक है पावर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने में, ठीक है। तो अगर पावर ऑफ मैट्रिसेस को आपको स्टडी करना कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो वी हैव स्टडीज दिस डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। अब ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ाया क्योंकि ये साइमेट्रिक मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है ना, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो वंस यू विल गो थ्रू द लेक्चर यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। सो दैट इज वाई वी हैव लर्न कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को देखें हम लोगों ने, उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा, एंड बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन में दैट आर यूजफुल, राइट। उसके हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को देखा, उसके डायगोनलाइजेशन को देखा, उसके बाद से फिर हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा और वैसे साइमेट्रिक मैट्रिसेस को देखना स्टार्ट किया जिनके आइगन वैल्यू ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, एंड दोज साइमेट्रिक मैट्रिसेस वी विल कॉल द पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगा, तो वन ऑफ द टेस्ट हम लोगों ने देखा था दैट वाज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड दिस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, राइट। तो मैंने यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म को पिक किया एंड उसका लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, right। Now we are at the end of the subject or we are at the end of the topic। we have gone through this singular value decomposition and you will find कि जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ोगे तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज होगा, साइमेट्रिक मैट्रिसेस का यूज होगा,
पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का यूज होगा। 4 फंडामेंटल का आप कनेक्टिविटी पाओगे यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का यूज होगा एंड दिस सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हैव द वेरियस एप्लीकेशंस लाइक इमेज कंप्रेशन, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। बट ओवरऑल पॉइंट क्या है कि जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अगर सिलेबस में मेंशन है तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स, right? So this is how logically we have covered the entire syllabus, right? Now let me go through the syllabus length, or sorry, the playlist length. That so you will find कि approximately it is 60 hour playlist। टोटल जो लेंथ है वो प्लेलिस्ट का वो 60 आवर है। एंड यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक मेंशन किए ना सारे टॉपिक्स कवर है, राइट? एंड लेट मी नो कि व्हाट आर द टॉपिक्स that you think that should be not there, right? Now let me go through this syllabus. So what we have covered: vector space, subspaces, linear dependence, independence of vector matrices, projection matrices, orthogonal matrices, and quadratic form, system of linear equations and solution, Gaussian elimination, eigenvalue, eigenvector, determinant, rank, nullity, projection, LU decomposition, singular value decomposition, right? So we are left with these two topics, and I will conduct, or moreover I have taken various example of this projection matrices, right? But still I will take a different session on this partition matrix. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं जब मैंने लेक्चर्स को इन बिटवीन कवर किया है, तो आई हैव टेकन वेरियस एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द ब्लॉक मैट्रिसेस, right? So these two topics, we hardly, it will take maybe 15 to 30 minutes, and I will covering these two topics. So that is all. That is how you should learn linear algebra, and you should complete the topic, right? And apart from that, all these lectures are completely free, right? So you can access anytime, anywhere, right? And apart from this, we have also started, Rajiv sir have also started with the programming, data structure and algorithm. So that will also be in the complete detailed manner, right? So you can go through those video, and yeah, that is all from my side, and thank you.